This is called comparison of quantities. इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों की तुलना. So if you look at this chapter, I mean, this is primarily for comparing one number against another. That's why it's called comparison of quantities, या हिंदी में आंकड़ों की तुलना. तो अगर इस चैप्टर का पूरा बाउंड्री देखा जाए तो इसमें दिस वन प्राइमरली टॉक्स अबाउट थ्री थिंग्स. A ratio. We need to clear about what is ratio, how does it work. We need to clear about percentage, कि परसेंटेज होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, और परसेंटेज का डिफरेंट फॉर्म्स अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ नो डिस्काउंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट वी पे. ठीक है. तो तो इसको इफ यू लुक एट दिस चैप्टर एज अ होल, वी विल टॉक अबाउट these things. रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात. And next thing will be डिस्काउंट. इसको हिंदी में बोलते हैं मैं भूल गया था एक्चुअली. दिस इज इंटरेस्टिंग वर्ड कॉल्ड बट्टा. ओके. और तीसरा जो हम लोग will kind of try relating that with real life example, that is all around the different types of taxes that we pay. Sales tax, VAT, then GST. इसको अगर I mean again not very much within the boundary of the course, but still just to understand, right? Because it's a practical example. Sales tax, to when you sell something, right, in a shop, so government asks you to pay a tax. There is a certain percentage of the price of the thing. तो सरकार को आपको वो टैक्स देना पड़ता है, उसको सेल्स टैक्स बोलते हैं. वैट जो है वैल्यू एडेड. ठीक है. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. So this is another type of tax that is introduced. GST is goods and services tax. So this is additional tax that is paid to government. So basically ये सभी taxes हैं. हम लोग को मजा नहीं आता है कंज्यूमर, राइट, कि ये भी टैक्स, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स. दाम देखा भाई कितना, तो लेट्स से 50 रुपए. When the shopkeeper gives the bill for payment, हो जाता है वो 60 रुपए या 60 रुपीज. क्यों भाई, दाम तो 50 देखा था. Then all these taxes play a role to change from this to this or any other number for that matter. तो चलिए हम लोग let's go step by step. We'll look at the concepts and then try relating that with a real life example. So मेरा आप लोग सबको रिक्वेस्ट यही रहता है कि don't read math or study math like a subject. Study it like a subject which will enable you to lead a better life. मतलब आपको आपकी दिनचर्या में इसका काम आएगा काफी. तो इसीलिए मैथ सीखना जरूरी है. मैथ इसलिए नहीं सीखते हैं कि नंबर लाएंगे और फर्स्ट कर जाएंगे. ठीक है. मैथ आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है. सो it's actually helping you learn the tricks of survival. Okay. So far so good. आगे बढ़े. आप लोग बीच बीच में हाँ ना बोलते रहेंगे. Yes, sir. So that I get confidence, because I don't get to see my screen actually. I only see the whiteboard. Okay. तो देखिए, first let's quickly recall what we have learned in the past, right? जैसे कि the first thing that I said was ratio, या इसको अनुपात बोलते हैं. So this is a mathematical concept that we use for representing relative values. मतलब किसी comparison में कुछ बोलना होगा. जैसे कि let's say you have a bag. Okay, उसमें you have 20 packets of bread and 5 packets of biscuits. ठीक है. So if somebody says what is the ratio of bread and 5 biscuits,
कोई बोलता है कि इसका क्या रेशियो है, मतलब ब्रेड और बिस्किट का, तो यू विल से 20:5. ब्रेड टू बिस्किट, ब्रेड टू बिस्किट का रेशियो है ये. अगर कोई बोलेगा कि बिस्किट टू ब्रेड का रेशियो क्या है उस बैग में, रिमेंबर कि 20 and 5, this is the number of packets you have, and come on, and तो ब्रेड टू बिस्किट का रेशियो अगर बोलेगा तो 20:5. बिस्किट टू ब्रेड बोलना है, बोलेगा अगर, तो इट विल बी 5/5:20. तो ये जो रेशियो होता है, यू कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट, यू कैन रीड दिस लाइक अ फ्रैक्शन. तो 20:5 can be read as 20/5. Okay, which becomes apparently 4. आप कैलकुलेशन करोगे तो, और 5:20 अगर है तो this can be represented as or read as 5/20. This is in terms of ratios how we represent them. Okay, अब इसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है? It helps you tell कि what is the relationship between two things. Let's say I have 5 pens and 10 notebooks. ठीक है, मेरे पास ये मेरे बैग में है. People will say what is the ratio of pen to notebooks for you? What is your ratio of pens and notebooks that you have? You will say 5:10. Okay, or 5/10. This, I mean, same thing. So in a way it helps you represent. Let's say आपने इसको simplify कर दिया 1/2. So basically what it tells is for every 1 pen there are 2 notebooks. For every 5 pen there are 10 notebooks, which is equivalent to every pen there are 2 notebooks. So this is just a relation. अब जैसे बोला जाए कि आपके घर में 5 बच्चे हैं और तीन बड़े लोग हैं, तो बच्चे और बड़ों का अनुपात क्या है? तो 5:3, 5:3 या 5:3 और 5/3, ये इसका है. सो बेसिकली नो, इफ यू गो टू स्कूल्स एंड ऑल, राइट, हर एक बोलते हैं हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में देयर शुड बी एक्स नंबर ऑफ टीचर्स पर स्टूडेंट. ऐसा नहीं कि एक क्लास है, वन क्लासरूम 500 students, second classroom 20 students. This is not right. So here this class is not in ratio. ये उसका अनुपात में नहीं है, मतलब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है सही नहीं है. वन टीचर कैन नॉट हैंडल 500 स्टूडेंट्स. तो ये दिस इज द टीचर, आप बोलेंगे टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इज 1:500, या इसको बोल सकते हैं 1/500, जैसे भी आपको ठीक लगे. ठीक है, सो दिस इज रेशियो. मतलब मान लिया जाए, अनदर एग्जांपल, यू विल से आपके क्लास में 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं. ठीक है, दिस इज बॉयज एंड दिस इज गर्ल्स. ओके, लड़के हैं और लड़कियां हैं. तो बोलेंगे बॉयज टू गर्ल रेशियो क्या है? तो बॉय टू गर्ल रेशियो इज 30:20. एक मिनट देखते हैं भाई कौन है. ओके, ओके. गुड इवनिंग सर. तो दिव्यांश, ओके, तो देखिए दिव्यांश, वी हैव स्टार्टेड क्लास 8 का 7th चैप्टर विच इज कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. ये हिंदी में बोलते हैं उसको आंकड़ों का की तुलना. ठीक है, तो हमने पहला भी स्टार्ट किया है रेशियोज के बारे में. सो you have not missed much. We'll just quickly go through that. Okay, so ratio, as I was saying, ratio is nothing but a way to represent a comparison. Okay, जैसे मैं बोल रहा था कि आपकी क्लास में मान लिया जाए 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 30 girls and 20 boys. I reverse the number. Okay,
तो गर्ल टू बॉय रेशियो, गर्ल टू बॉय रेशियो अगर कोई बोलेगा तो यू विल से 30:20, नॉट इक्वल टू 30:, ओके। या इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना तो 30/20 बोल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या पता चलता है, फॉर एवरी 3 गर्ल्स देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, ठीक है। तो दिस जस्ट टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेशियो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। नो सर। ओके, दिव्यांश आप क्लियर है रेशियो को लेकर के? सर अभी एक बार वीडियो देख लूंगा। हाँ नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं। देखिए, रेशियो का मतलब है, रेशियो इज ऑलवेज अ comparison between two numbers, okay? Let's say somebody says you have 10 breads, okay? आपके पास 10 चपाती है और लेट्स से आपको चपाती और एप्पल खाना है उस दिन, ठीक है। ये थोड़ा गंदा कॉम्बिनेशन है बट फिर भी बोल रहा हूँ, चलिए कि 10 चपाती है और 20 एप्पल है। पीपल विल से व्हाट इज द रेशियो। आइए आप हिंदी में बोलोगे कि इसका अनुपात क्या है, तो आप बोलते हो ब्रेड टू एप्पल रेशियो 10:20। मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो 10/20, फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे बोलोगे। सिंप्लीफाई किया तो क्या मतलब हुआ, फॉर एवरी ब्रेड देयर आर 2 एप्पल्स, है ना। हर एक चपाती के लिए 2 एप्पल है। मतलब आपको अगर ये सोचना होगा कि मैं खा रहा हूँ, आपने पूरा भीड़ लगा के रखा हुआ है, एप्पल का टीला बना के रखा हुआ है, चपाती रखा हुआ है और आपको आइडिया नहीं, आप खाते जा रहे हो, पता चला लास्ट में सिर्फ एप्पल ही बच गया या सिर्फ चपाती ही बच गई, ठीक है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग द राइट स्पीड, मतलब फॉर एवरी ब्रेड यू आर कंज्यूमिंग राइट नंबर ऑफ एप्पल्स। तो वो अगर आपको जानना है तो आप जान रहे हो कि भाई हर एक चपाती के साथ में अगर 2 एप्पल खा रहा हूँ तो मतलब आई विल नॉट बी रनिंग आउट ऑफ एप्पल और ब्रेड, आई विल बी गोइंग द राइट पेस। तो ये अनुपात जो होता है ना, या ये रेशियो होता है ना, दिस टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन टू दिस थिंग। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेड और एप्पल का एग्जांपल दिया, क्लास में आप बोलेंगे कि मान 20 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो 20:25। मतलब इफ दिस इज बॉयज एंड दिस इज गर्ल्स, तो देन यू विल से 20:25। इसको आप हमेशा यू कैन रिप्रेजेंट दिस इज अ फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है। जो भी ऐसे जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में रखेंगे। ये जो रेशियो का साइन है इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको डिवीजन बना देंगे, ठीक है, 20:25। तो इससे आपको पता चलता है कि फॉर एवरी 5 बॉयज देयर 5, फॉर एवरी 4 बॉयज देयर 5 गर्ल्स, मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्या बोलते हैं दीज टू नंबर्स। और इफ यू हैव टू कंपेयर, या मान लिया जाए, एक एग्जांपल मैंने दिया कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं और एक टीचर है, 20 बच्चे हैं। दूसरे क्लास में एक टीचर है, 50 बच्चे हैं। तो यहाँ पे टीचर टू किड्स का रेशियो है 1:20, 1/20 या 1:20। और दूसरे क्लास में ये है 1/50 या 1:50। तो आपको ये पता चलता है कि हर एक 50 बच्चे पे एक टीचर है। दिस लुक्स वेरी ऑड। यहाँ पे पता चलता है कि हर एक 20 बच्चे पे एक टीचर है। सो दिस इज इजी टू मैनेज, राइट। इस क्लास में मान लिया जाए कि अगर 500 बच्चे आ जाएंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू पे इक्वल अटेंशन टू यू गाइस, राइट। सो बिकॉज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो विल increase, right? For every teacher there will be so many students, so that is what this says. और बाकी दिव्यांश, does this clarify or you still would want me to explain this? चलिए बाकी आप वीडियो देख लीजिए, अभी हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे तो उससे और भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज परसेंटेज। ये भी हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैथ नहीं है, ये अपना लाइफ का पार्ट है। या इसको
हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। इसमें देखिए पर और सेंट, CENT, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100, पर तो जानते हैं पर 100, पर कैपिटा, पर पर्सन, पर मंथ, पर आवर, तो वही है ये पर सेंट, है ना। हिंदी में प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, ओके। तो इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ना, ये बोलता है कोई भी परसेंटेज या प्रतिशत मतलब हाउ मच पर 100, दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट हाउ मच और मेनी पर 100, दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट परसेंटेज। देखिए इस पे मतलब इसकी इंग्लिश पे या हिंदी पे इस पे ध्यान दीजिए इसका, ठीक है। परसेंटेज मतलब हाउ मच पर 100, 100 में कितना होगा, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है 20%, मतलब 20 पर 100, ठीक है। अब देखा जाए, देखिए हम लोग रिलेट करते हैं इसको। कोई बोलता है मैथ का एग्जाम दिया, हाँ भाई दिया, कितना आया 60%, ओके। साइंस का एग्जाम दिया, कितना आया, लेट्स से somebody says 80%, ओके। अब ये 80% और 60% इज अप अगेन परसेंट, मतलब पर 100। मान लिया जाए आपके मैथ का पेपर जो था उसमें 2 पेपर थे, ठीक है। हर एक पेपर 100 मार्क्स का था, तो टोटल हो गया आपको 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। आपने कहा मुझे मिला 60%, अगेन दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ओके। मतलब किसी को आया, मान लिया जाए किसी बच्चे को 60% आया, टोटल एग्जाम हुआ था 200 का, 60% मतलब पर 100 ही और शी गॉट 60। अब देखिए यहाँ पे कितने हंड्रेड्स हैं, 200 हैं, तो पहला 100 ही गॉट 60, ओके। कहाँ गया, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो उस बच्चे को मार्क्स आया है 60%, ठीक है। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का मार्क्स है 60%, हाँ। पहला पहला 100 में 60, जहाँ पे 200 है, राइट, तो दूसरे 100 में भी 60 आया होगा, मतलब टोटल मार्क्स आया 60 + 60, 120 आया है, ठीक है, इस बच्चे को मार्क्स। तो बेसिकली परसेंट को अगर सिंपल तरीके से समझेंगे, पर 100 हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया जाए बच्चे ने कहा कि मुझे 60% मार्क्स आया, 60% तो 60% है, अब कितना आया, कितना भाई, 2 नंबर आया, 200 नंबर आया, 500 नंबर आया। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि परसेंट का मतलब पर 100, 200 पर 100 कितना, तो 60% है, तो पर 100 60, मतलब एक पहले वाले 100 में 60 है, दूसरे वाला 100 में 60। अगर मान लिया 300 का एग्जाम हुआ होता तो 300 तक देते यहाँ पे, तो इस वाले में भी 60 आया होगा, तो सब मिला के हो गया 180 मार्क्स। तो बेसिकली परसेंटेज इट जस्ट टेल्स यू कि इन 100 हाउ मच। तो अब थोड़ा देखते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं इन 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 टर्म्स ऑफ रियल लाइफ। अब जैसे कि मान लिया आप दुकान में जाते हैं, वी विल डू लॉट ऑफ सम्स, ओके, सो टेंशन मत लीजिए अगर कुछ डाउट हो रहा है तो। दुकान में जाते हो, दुकान में बाहर में लिखा होता है दिवाली डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग। भाई चलो 30% डिस्काउंट, या हिंदी में बोलता है 30%। अब वैसे हिंदी लिखा हुआ देखा नहीं मैंने, दुकान में ऐसे लिखते नहीं हिंदी में बट्टा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग नहीं समझेंगे उस चीज को, लेकिन हाँ मीनिंग वही होता है। तो 30% डिस्काउंट। तो अभी देखिए हम लोग देखे मैथ का एग्जाम्पल में देखे थे कि मैथ 200 नंबर का था, बच्चे ने कहा कि मुझे 60% आया, तो पहले वाले 100 में 60, दूसरे वाले 100 में 60 मिला के 120 मार्क्स आया था। अब दुकान में आपको बोल रहा है 30% दिवाली डिस्काउंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हर एक सामान का जो दाम होगा
फॉर एवरी 100 यू विल गेट 30 रुपीज का डिस्काउंट। मतलब आपने मान लिया जाए कोई सामान पिक किया, उसका दाम एग्जैक्ट 100 था, हाउ मच यू विल गेट इट फॉर 70 रुपीज, क्योंकि दुकानदार ने कहा कि आपको 30% डिस्काउंट, तो 100 का सामान पे 30 रुपीज का डिस्काउंट। तो आपको अगर किसी सामान पे दाम लिखा हुआ 100, तो द शॉपकीपर विल गिव यू फॉर 70 रुपीज। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो लेट मी कंफर्म, आर यू गाइस विथ मी? कुछ डाउट है तो Yes, बोलिए। sir. कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ओके, तो ये है डिस्काउंट का खेल, ठीक है। अब दुकानदार ने क्या घपला किया होगा बिहाइंड द सीन, नोबडी नोज। कि दिवाली से पहले जो सामान का दाम 100 रुपया था, उसको उस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। बाद में क्या किया, दिवाली से पहले इसके ऊपर स्टिकर लगा दिया 150 का, अब बोला 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले ये 100 में बेच रहा था, अभी 30% डिस्काउंट, मतलब हर एक 100 पे 30, तो 150 पे कितना होगा? तो अब इसका थोड़ा फॉर्मूला समझते हैं। देखिए, तो पहले परसेंटेज निकालना होगा, तो इसको लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो अगर कोई बोलता है 20% डिस्काउंट, ठीक है, मतलब 20 इन 100, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे 20 रुपीज फॉर एवरी 100, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देता हूँ। 20%, देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट अ नंबर 1 और एक 0 2 0। तो जो भी परसेंटेज है उसमें एक्चुअली देयर इज 100 हिडन हियर, खाली थोड़ा नंबर को आगे पीछे कर दिया है कि ये 1 है आपको, और ये 0 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो 20% अगर है, दैट इज 20 के बाद 20/100, मतलब ये है पूरा नंबर, दिस इज 100, देखिए यहाँ पे 1 है और ये 0 0 है, ठीक है। 20, तो इसको समझाएंगे इस तरह से, याद रखने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाए कि परसेंट पर 100, ओके, मतलब इन एवरी 100 दैट मच वैल्यू, ओके। तो कोई बोलता है अगर कि 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 इन 100, 10 इन 100, ठीक है। अगर कोई बोलेगा तो अगर आप मान लिया आपका सामान का दाम है कितना, लेट्स से यू गो टू अ स्टोर, पिक अप अ शू व्हिच इज फॉर लेट्स से 200 रुपीज, क्या मैं 200 में आजकल कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो दिस गाइस टेल्स यू दैट आई कैन गिव यू 10% डिस्काउंट, ओके। तो 10 इन 100, ओके, या इसको, हाँ देखिए ऐसे लिखते हैं 100 में 10 का डिस्काउंट, ओके। 1 रुपी में कितने का डिस्काउंट होगा अगर मान लिया जाए, देखिए इसका ये दिस गाइस इज सेइंग 10% डिस्काउंट, ओके। तो 10% डिस्काउंट मीन्स अगर 100 रुपीज का सामान होगा तो 10 रुपीज का डिस्काउंट है। तो अगर 1 रुपये का सामान हो तो कितना डिस्काउंट होगा? यूनिलैटरल मेथड जो होता है ना उसको यूज करेंगे, मतलब एक एक नियम जो बोलते हैं। तो 100 में 10 का डिस्काउंट, तो 1 में कितना का डिस्काउंट? देखिए इसको 1 into 100 बोल सकते हैं, है ना, 100 को। तो समझिए 1 में कितना का डिस्काउंट, तो ये 100 को यहाँ मल्टीप्लाई है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ से ऐसे। अभी देखिए इसको एक अपना हम लोग नॉर्मल इक्वेशन जैसा यूज करते हैं, तो आई थिंक दैट विल मेक इट इजी टू रिमेम्बर। मुझे पता है कि आप लोग जानते हो, लेकिन मैं इसको इसलिए
सिंप्लीफाई तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि इसको आप जानो नहीं, इसको आप ये दिस दिस नो काइंड ऑफ रिमेन्स विथ यू फॉर एवर। ओके, हाँ देखिए, तो somebody says 10% का डिस्काउंट है, हाँ मतलब 100 रुपीज का सामान अगर आप पिक करते हो तो कितना डिस्काउंट है? 10 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। तो अगर आपने 1 रुपये का सामान लिया होता तो क्या होता? तब कितने का डिस्काउंट होता? परसेंटेज 10 ही है, दिस परसेंटेज इज फिक्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट नंबर कितना होगा। कि अगर 100 रुपये का सामान होता तो डिस्काउंट होता 10 रुपये का, तो मतलब 100 माइनस 10 हो जाता, 90 आपको देना पड़ता है। तो हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि भाई 10% डिस्काउंट बोला है, दुकान में ही सब कुछ पे 10% डिस्काउंट है, हर चीज का दाम 100 रुपया तो नहीं होगा, किसी का दाम 100 होगा, किसी का दाम 50 होगा, किसी का दाम 200 होगा, किसी का 700 होगा, राइट। तो 100 में 10 डिस्काउंट, तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर मैंने कोई 1 रुपये का सामान उठाया तो कितना डिस्काउंट होगा, कितना रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये होगा दिस विल बी 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि यू कैन ऑलवेज राइट 100 एज 1 into 100, ठीक है। फिर आपने so you keep 1 here and this comes here, इसे इक्वल टू साइन है अगर, तो समझिए कि ये यहाँ से यहाँ क्रॉस हो रहा है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन हो जाएगा। तो अब अभी ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई बच्चे बड़े हैं तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। तो 10% का इफ यू गो टू अ स्टोर इट सेज 10% डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट। तो आपको पता करना है कि भाई मैं कितने का सामान ले रहा हूँ, उसमें मुझे कितना छूट मिलेगा। मतलब 100 रुपीज का सामान पे 10 रुपीज का छूट मिलेगा। मतलब इफ द मार्क द स्टिकर प्राइस इज 100 रुपीज, मुझे वो 10 का डिस्काउंट दे करके, मतलब 100 माइनस 10 90 में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यू आर ट्राइंग टू सी हाउ दिस वर्क फॉर यू इन रियल लाइफ। तो आपने मान लिया जाए अगर 1 रुपये का सामान पिक किया अगर, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो दैट विल बी 10 बाई 100, अगर 10% डिस्काउंट है। तो अगर आपने 500 का सामान पिक किया तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? तो इट विल बी 10 बाई 100 इंटू 500। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। 10% डिस्काउंट है, आप दुकान में बोला गया आपको 10% डिस्काउंट हर चीज पे है, तो आप मतलब 100 रुपीज का सामान पे 10 रुपीज का डिस्काउंट है। 1 रुपये के सामान पे कितना का डिस्काउंट होगा? 10 बाई 100। अगर 500 का सामान है तो कितने का डिस्काउंट होगा? 10 बाई 100 इंटू 500 हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, करेक्ट। कि 100 रुपीज का सामान है, 10% 10 रुपीज का डिस्काउंट होगा। अगर वही सामान हम 1 रुपये का पिक करते हैं तो कितना डिस्काउंट होता है? 10 बाई 100, मतलब मैं दुकान बोल रहा है, ये ऑफर ये चल रहा है, ठीक है। तो 500 का सामान है तो कितना डिस्काउंट हो गया? 10 बाई 100 इंटू 500। आप लोगों को लग रहा हो मैं जल्दी कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस डिस्काउंट इज 50 रुपीज, मतलब आपने अगर 500 रुपए का सामान पिक किया तो आपको 50 रुपए की छूट मिलेगी। मीनिंग इफ द स्टिकर प्राइस इज 500 यू विल गेट इट फॉर 500 माइनस 50, मतलब 450 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो खैर डिस्काउंट का समझाने का तरीका था कि डिस्काउंट कैसे निकलता है, मतलब हाउ डू यू कैलकुलेट। नाउ एनी परसेंट, somebody says हमने क्या निकाला? 500 रुपीज के सामान पे कितना डिस्काउंट होगा? 10%, सॉरी कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर 10% डिस्काउंट को ऑफर कर रहा है तो ये ध्यान यहाँ पे देना होगा, इसके ऊपर एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट। कि दुकान में डिस्काउंट था 10%, हम लोग निकाले कि भाई 10% डिस्काउंट है तो 500 रुपए के सामान पे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने देखा कि 100 पे 10, 1 पे 10 बाई 100 और 500 पे 10 बाई 100 इंटू 500। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू निकला, इस पे थोड़ा गौर फरमाइए भाई आप लोग। देखिए ये क्या है? दिस वाज द मार्क प्राइस, दिस इज द परसेंटेज दैट इज ऑफर्ड बाय द शॉप,
परसेंटेज तो पर 100। तो आगे से अगर कभी भी आपको कोई चीज का परसेंटेज निकालना हो, देखिए हमने क्या किया, 10% डिस्काउंट चल रहा है तो 500 का 10% कितना होगा, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, राइट। तो कोई भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो ना, लेट्स से समबडी सेज 20% ऑफ 1000, ठीक है, हम लोग वहां क्या निकाले, 500 का 10% कितना होगा, तो दैट वाज 10/100 इंटू 500। यहाँ पे कोई भी चीज का सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ नंबर, राइट, तो आप लिखिए, वो नंबर को लिख लीजिए पहले, दिस इज द नंबर हुज 20% यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 20%, 20, और ये मैं बोल रहा था ना कि ये जो है इसको, दिस इज लाइक अ, लुक्स लाइक 100, तो यू विल पर 100 परसेंट, दिस इज 100 ऐसे देख रहे हैं, 100 से दिख रहा है ना ये परसेंटेज, तो दैट्स व्हाट विल ब्रिंग डाउन। अभी बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का परसेंटेज जो होता है, दैट इज वेरी सिंपल। 20 मान लिया 20 रुपीज का आपने पेंसिल खरीदा, शॉपकीपर बोलता है कि 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको पता करना है कि भाई आपको देना कितना है। 20 तो लिखा हुआ पेंसिल का दाम, 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो मतलब ठीक है, निकालते हैं 20 का 30% कितना, 20 का 30%, 30% जो भी परसेंट है उसको दैट बाय 100 लिखेंगे, परसेंट, 20% पर 100, ठीक है, बस ऐसे करना है इसको कैलकुलेशन। तो देन योर लाइफ बिकम्स इजी, देन यू नो कि ओके 2 into 3 6, 6 रुपए का डिस्काउंट है, दिस इज द डिस्काउंट, तो 200 पे 6 का डिस्काउंट, मतलब 200, सॉरी 20 में से 6 डिस्काउंट किया गया, मतलब 20 माइनस 6 करके आपको उतना देना है, सो यू हैव टू गिव ओनली 14 रुपीज। चलिए कुछ सम करते हैं, देन आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू रिलेट। तो अभी तक जो हमने जस्ट रिकैप, हमने रिकैप किया कि व्हाट इज अ रेशियो, रेशियो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, बॉय टू गर्ल रेशियो, क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 बॉयज 20 गर्ल्स, तो बॉय टू गर्ल रेशियो इज 30:20, इसको आप 30/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज वन। नाउ तो ये था रेशियो। दूसरा हमने सीखा परसेंटेज, परसेंटेज मतलब पर 100, 20% बोलता है, मतलब 20 पर 100, दिस इज योर दिस थिंग। अब कोई बोलता है 50 का 20%, तो 50 इंटू 20/100। कोई बोलता है 2 का 20%, तो 2 इंटू दिस। इफ somebody says 5,000 का 20%, तो 5,000 into 20/100, तो 20% will not change, 20/100 will not change, you'll just keep on multiplying this number जिसका कि आपको 20% निकालना है। अब ये 20% था, कल को कोई बोलेगा कि एक दुकान में अभी चलिए क्रिसमस के लिए अभी 35% डिस्काउंट, तो अब 35% डिस्काउंट मतलब ये वैल्यू फिक्स है, 35/100 फिक्स है। अब जो सामान आप पिक कर रहे हैं उसका उस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता चले कितना छूट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपने मान लिया जाए एक जीन्स पिक किया, उसका दाम है 1200 रुपया, तो 1200 का इतना, दिस 35%, सो दिस इज द वैल्यू दैट विल बी डिस्काउंटेड, मतलब सेल्स जो दाम लिखा हुआ है इतना माइनस जो भी निकलेगा, ये मान लिया जाए निकलता है 12 5 60, 420, आपको 420 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 1200 माइनस 420, दैट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू गिव टू द शॉपकीपर, ठीक है। चलिए कुछ थोड़ा सम करते हैं, देन विल कम बैक। अभी तक कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। No, sir. चितेश, दिव्यांश, I'm assuming no doubt. If there is a doubt, please feel free to raise your hand. Okay. चलिए कुछ सम्स देखते हैं, आई थिंक दैट विल मेक इट मोर क्लियर। देखिए अभी
एग्जाम्पल है ये, ठीक है। A picnic is being planned in a school for class 7. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in numbers. The picnic site is 55 kilometers from the school and the transport company is charging at the rate of 12 per kilometer. The total cost of refreshment will be this. ये थोड़ा बड़ा सवाल हो गया. I think there's one more thing that I need to cover before we go there. Okay. Okay. Yeah, नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, it's okay. Let's look at the first part. A picnic is being planned in a school for class 7. Girls are 60%. Girls are 60%. ठीक है, नोट करेंगे. मैथ करते वक्त यही होता है, जो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसको नोट करते जाएंगे. Total number of students are 18 in numbers. Total number of students, okay? Total is 18. Okay. All right. Okay. The picnic site is 55 kilometers from the school. तो पिकनिक साइट डिस्टेंस है, मान लिया डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, ठीक है. The transport company is charging at a rate of 12 per kilometer. तो 25 किलोमीटर 55 किलोमीटर डिस्टेंस है और पर किलोमीटर 12 रुपीज चार्ज कर रहा है. तो अभी अभी यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना पर किलोमीटर, तो इतना चार्ज कर रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी. ओके. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280. तो ये क्या एक फ्लैट कॉस्ट बोल रहा है शायद से. ओके. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस हियर. Can you tell the ratio of the number of girls to the number of boys in the class? देखिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. पहले तो अभी हमको ये पता नहीं है कि भाई लड़के कितने हैं, क्योंकि कोई लिखा नहीं था. लेकिन देखिए परसेंटेज, ठीक है, मतलब पर 100. यहाँ पे क्या बोल रहा है, गर्ल्स आर 60%. क्लास में दो ही तरह के बच्चे होंगे, राइट, गर्ल्स और बॉयज. घोड़ा गधा तो होगा नहीं है. तो दैट मीन्स girls are 60%, matlab in every 100 there are 60 girls, meaning what is the remaining thing here? So in 100, every 100 there are 60 girls. Matlab baki kitne bache? If you pick 100, then you have 40 boys actually. If you are picking a group of 100, then you have 60 girls and 40 boys. That's what the percentage is, right? तो मतलब यहाँ पे बॉयज का परसेंटेज क्लास में कितना हो गया, 40%. ठीक है. इसको हमेशा ऐसे समझ सकते हैं कि परसेंटेज जब कोई बोल रहा है, देखिए परसेंटेज इज ऑलवेज अ रेफरेंस पॉइंट. समबडी सेज कि आपके क्लास में बॉयज का परसेंटेज 50, बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज 50-50 है. मतलब इफ यू आर पिकिंग 100 किड्स, 50 आर बॉयज, 50 आर गर्ल्स. 30-70 है, 30% बॉयज, 70% गर्ल्स, और एनी विच वे, राइट. तो आप देखेंगे अगर दो ही चीजें हैं, आप परसेंटेज की बात करें तो यू कैन सिंपली सबट्रैक्ट दिस वन टू गेट द परसेंटेज फॉर दैट वन. मान लीजिए आपको कहा जाए क्लास में या तो पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं. पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज इज 70, तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज हो जाएगा 100 - 70, 30%, रिमेनिंग 30%. ओके. क्योंकि सब कुछ मिला के 100 ही होना है लाइफ में. ठीक है. आपको लेट्स से आपने मैथ्स का एग्जाम दिया, आपको कितना आया, 80% लेट्स से. तो उसका क्या मतलब हुआ कि 80% ऑफ द सम्स यू डिड राइट, 20% यू डिड नॉट, इसलिए आपको 80% आया. आपने अगर 90% लाया, इसका मतलब आपने 90% क्वेश्चन का सम सही किया, 10% आपने सही नहीं किया. तो दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. सो यहाँ पे भी देखेंगे गर्ल्स का परसेंटेज 60% है, तो बॉयज कितने हैं, तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स ही होंगे. तो 60% ये है, तो 100 - 60 कर देंगे, तो दैट विल गिव यू बॉय का परसेंटेज. लेकिन सवाल था क्या, व्हाट इज द रेशियो. तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं. आपको पता चल गया कि गर्ल्स का परसेंटेज है 60, और ये आपको सवाल में दिया हुआ था, आपने निकाले कि अगर गर्ल्स का 60 है तो बॉयज का परसेंटेज हो जाएगा 100
माइनस 60 मतलब 40%। ठीक है, अभी 60% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स हैं क्लास में। ठीक है, मतलब अगर 60 गर्ल्स हैं तो 40 बॉयज हैं। दिस इज योर रेशियो 60:40। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल का जवाब। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। No, sir. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए मैथ में वही है कि कोई भी सवाल आएगा ना तो उसको पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार पढ़िए। डोंट स्टार्ट सॉल्विंग इट, इफ यू रीड इट 2-3 टाइम्स आई थिंक इट विल मेक इट क्लियर। नाउ द सेकंड पार्ट, कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आल्सो गोइंग विद द क्लास। अब देखिए कॉस्ट पर हेड बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल देखिए यहाँ पे पहला पहला सेंटेंस में girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. Okay, तो अभी यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं girls are 60% and 18 in numbers. There are 18 girls. अब boys कितने हैं पता नहीं, 2 टीचर हैं ये पता चल रहा है। ठीक है, so let's try solving it. तो अभी जो जो पता है वो लिखते जाते हैं। गर्ल्स 60%, in actual number they are 18, boys 40%, actual number we don't know। ठीक है, टीचर्स 2, और क्या पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू द पिकनिक प्लेस इज 55 किलोमीटर्स एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग 12 रुपीज पर किलोमीटर। So they are charging how much only for transport? 12 by 60, 66. Okay, तो 660 रुपीज दे टू पे फॉर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बोला कि इसमें कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज 4280। तो रिफ्रेशमेंट ये है ट्रांसपोर्ट और ये है रिफ्रेशमेंट 4280 जो भी है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं क्या, फाइंड आउट द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आल्सो गोइंग विद द क्लास। तो पहले तो अभी हमको पता ही नहीं टोटल लोग कितने हैं। वी नो दैट दे आर 18 गर्ल्स, दे आर 2 टीचर्स, नाउ हाउ मेनी बॉयज। तो देखिए अभी इसका तरीका क्या है, there are 18 girls, okay, 18 girls is equal to 60%, right? There are total 18 girls which makes 60% of the class, right? तो अभी निकालते हैं कि टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं। हम लोग सो 18 इक्वल्स टू 60%, ओके। तो हाउ मच विल बी 100%, मतलब टोटल क्लास। ओके, तो देखिए यहाँ पे if 18 equals 60%, what value will be equal to 100%? That's what we are trying to figure out, right? तो तो क्या करेंगे, 18 equals to 60%, okay? What value will be 100%? तो इसको ऐसे करते हैं, 18 okay equal to 60%। ठीक है, हमको पता करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%, ओके। तो 1 उसको उल्टा लिखिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैसे करके मैं आपको सिंपल तरीके से दिखा पाऊँ। 60% वैल्यू इज 18। इफ वी हैव 60% गर्ल्स इन द क्लास दैट इज एडिंग अप टू 18, ओके। हाँ ठीक है, तो 60% इक्वल्स टू 18, ओके। तो 1% विल बी हाउ मच, 18 by 100, 18 by 60। Are you guys with me? We are trying to find out
what is the total number of kids in the class? Total number of kids मतलब 100% kids. Okay, तो बोल रहा है कि 60% लड़कियां हैं and they add up to 18. If you read this question, girls are 60% of the total number of the students and are 18 in numbers. ठीक है, तो 60% of the girls, 60% of the class which is girls is making 18. तो हम लोग पता करना चाह रहे हैं ये पूरा क्लास मिला के कितना है, मतलब what is the total number of kids in the class, मतलब 100% of the class. So 60% is 18. What will be the value of 1%? It's 18 by 60. ये नीचे आ जाएगा. So what will be the value of 100% for the class? That will be 18 by 60 into 100. ठीक है, 6 0 0 गया, 6 3 जा 18. So what this tells you is there are 30 students in the class. अब ये बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? I'm repeating, 60% are girls and that number is 18. If you read this sum again, देखिए पहला लाइन पढ़िएगा सिर्फ. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. मतलब girls are 60% of the whole class and they are 18 in numbers. So 60% of the class which is girls is 18. So what is 1% of the class? So that will be 18 by 60. What will be 100% of the class? Will be 18 by 60 into 100. ये वाला कैलकुलेशन में मतलब क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, आर यू गाइस क्लियर? तो अभी तक हमने सिर्फ निकाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 30. उसमें से क्या हो गया, 18 गर्ल्स हैं, लड़के कितने हो गए फिर? 30 minus 18 12. दे आर 2 टीचर्स. तो अभी टोटल लोग जो पिकनिक में गए हैं 18 + 12 + 2 32. यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए भाई पहले, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. आर यू गाइस क्लियर? आर यू गाइस able to follow me, not able to follow me? Yes, sir, we are clear. Okay, all right. तो देखिए, now the second question was the ratio per head if two teachers are also going with the class. देखिए हमने देखा था कि अलग अलग क्या the cost per head. तो अभी देखिए cost क्या क्या था. There is one travel cost 55 kilometer distance and the transport company is charging 12 per kilometer, and then refreshment cost. तो refreshment cost था आपका 4280. ये this is fixed और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चार्ज कर रहा है 55 रुपीज पर किलोमीटर. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट. इसमें एक और भी कैच रहेगा. पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. तो ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बस लेके उसको गई होगी और लेके आई होगी, राइट? 55 किलोमीटर वन साइड, सो दे वुड हैव ट्रैवल 55 into 2. तो into 2 कर सकते हैं. तो ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट है और ये टोटल लोग है. ठीक है, now you can divide this total cost by this and you'll get this thing. Okay, I'm not doing that calculation right now. ठीक है, so that we can cover more concepts. तो ये हो गया आपका. Next question is, if their first stop is at a place 22 kilometers from the school, what percentage of the total distance is this? ये क्या बोल रहा है? Their first stop is 22 kilometers from the school. What percentage of the total distance is this? मतलब बोल रहा है कि 22 किलोमीटर पे फर्स्ट स्टॉप है, टोटल डिस्टेंस 55 है. तो बोल रहा है कि what percentage is this? मतलब what percentage of the distance they have covered. मतलब what is 22 as a percentage for 55? Okay, तो कैसे निकालेंगे? What, ये सवाल ये है, 22 is what percentage of 55? 22 is what percentage of 55? ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? अभी 55, इसको देखिए ऐसे करेंगे. 55 is what?
100% ऑफ 55। आपके पास 200 रुपया है, यू सेड आई विल गिव यू 100% ऑफ वट एवर आई हैव, मतलब आप 200 दे देंगे, ठीक है। सो एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसका 100% आपको दे दूंगा, मतलब मेरे पास अगर 200 रुपए हैं तो आपको 200 दे दूंगा, मेरे पास अगर 5,000 है तो आपको 5,000 दे दूंगा। सो एनी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का 100% होता है। तो 55 यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 22 किलोमीटर ट्रेवल किया है, व्हाट इज द परसेंटेज इट हैज ट्रेवल्ड, राइट। व्हाट परसेंटेज इज 22 ऑफ 55, मतलब 55 का कितना परसेंट है 22। तो हम कैसे करेंगे कि 55 जो है उसका 100%, 55 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 55 किलोमीटर, दैट इज 100%। अगर 55 कर लिया होता तो बोलते हैं हम 100% कवर कर लिया। अगर 1 किलोमीटर कवर किया होता तो कितना कवर किया होता? दिस पार्ट यू गाइस आर क्लियर? अगर 22 किया होता तो कितना किया होता? तो 1 जितना है उसमें 22 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बाय 55 टू 22, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 20, 20 into 2 40%। तो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अभी तक 22 किलोमीटर ट्रेवल किया है, बोल रहा है हाउ मच परसेंटेज आई हैव कवर्ड, और व्हाट इज 22 ऑफ 55 एज अ परसेंटेज। तो 50 हमने क्या किया, 55 जो है पूरा 100, अगर 55 कवर कर लिया होता तो 100% कवर कर लिया होता। 1 कवर किया होता तो 100 बाय 55 किया होता। अगर 22 किया है तो कितना किया है, 100 बाय 55 इंटू 22। तो हमेशा देखिएगा यहाँ पे ये दिस पार्ट आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस वुड बी नोइंग, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, इसको करते भी होंगे, नहीं? लेकिन ध्यान ये रखना है ना कि यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट थिंग्स इन द मल्टीपल ऑफ 1, कि भाई 1 में कितना, अगर 1 में पता चल गया तो फिर देन यू कैन इफ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 5,000 यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय 5,000, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20 यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय 20। तो हमेशा बोल रहे हैं 55 किलोमीटर ट्रैवल करना था तो 100% कवर हो जाता। तो अभी से 22 ही किया है तो कितना कवर हुआ है, तो ऐसे निकला हमने 1 में कितना होता है, 22 में कितना होगा निकाल लेंगे। यहाँ पे कैच क्या है देखिए, ये दिस बाय दिस 22 बाय 55 हमेशा व्हेनेवर यू हैव, उप्स, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए 100 ऊपर में है, जो नंबर को परसेंटेज निकालना है वो, और जिसके अगेंस्ट में निकालना है वो यहाँ पे है। तो कैच क्या हुआ इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 22 बाय 55, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये डिस्टेंस था जिसको हम पता करना चाह रहे थे कि वो कितना परसेंट है इसका। तो जिस भी नंबर का को पता करना है कि वो कितना परसेंट है, दैट विल बी द न्यूमरेटर अंश, और जिसके अगेंस्ट में निकालना है वो होगा डिनोमिनेटर। तो आगे से देखिएगा, हमेशा मैंने तो करके दिखाया कि एकदम लेमैन्स टर्म में कैसे निकालेंगे, राइट, कि भाई 55 किलोमीटर होता तो 100% हो जाता, 1 किलोमीटर होता तो कितना होता, 22 किलोमीटर हुआ है तो कितना हुआ है, मैंने उससे निकाला। लेकिन इसमें कैच था ये, कैच ये था कि आपको 22 किलोमीटर कवर किया है, मतलब कितना परसेंट कवर किया है, टोटल डिस्टेंस था 55। तो हमेशा इफ यू हैव टू फाइंड एनी नंबर is what percentage of some other number, this is the formula you will use। परसेंट में तो 100 का खेल होना ही होना है, 100 you will write any number x is what percentage of y is the formula। जो हमने देखा, आप हमेशा खुद अभी भी कर सकते हो, आप इसको देखिए वैसे करोगे, y is the number which is 100%, x is what percentage of y, तो हम लोग करें y is equal to 100%, तो 1 is equal to 100 by y%, so x is 100 by y
into x per this percentage. So x, this tells you x is what percentage of y. तो ये आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है. आप हमेशा करोगे क्या कि आपको कोई बोलता है कि भाई अरे यार मुझे 60 रुपए चाहिए था कुछ सॉक्स खरीदने के लिए, मेरे पास 20 रुपए ही हुए हैं. पता अब देखता हूँ कितना परसेंट अभी तक हुआ है सेविंग, कितना परसेंट अभी तक मैंने जमा किया है. तो 20 मैंने जमा किया है, मुझे जमा करना है 60, तो कितना परसेंट जमा किया है. दिस इज व्हाट टेल्स यू any number. If you have to find out what percentage it is of another number, वो नंबर किसी और नंबर का क्या परसेंटेज है, तो आप उस नंबर को लिखेंगे, उसके नीचे उसको डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर से जिसके अगेंस्ट निकालना है. अब मान लिया जाए सर, हाँ अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज, अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के बारे में बोलते हैं कि भाई किसी को नेताजी को जीतने के लिए चाहिए 52%. ठीक है, ओके. उनको पता है, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, कि एक जगह पे मान लिया जाए 10,000 वोटर्स हैं. ठीक है, नेताजी को पता है उनको 3,000 वोटर्स उनके सपोर्ट में है. हाँ? तो नेताजी बोल रहे हैं भाई कितना परसेंट वोटर मेरे सपोर्ट में है, तो उनके पास 3,000 वोटर सपोर्ट में है, टोटल पॉपुलेशन है 10,000. तो पता करना चाहे नेताजी कि कितने परसेंट वोटर उनके साथ हैं, तो ये बताता है कि 30% वोटर उनके साथ में है. नेताजी को टेंशन हो गया कि 30% में कैसे होगा भाई, मेरे को तो 50% ज्यादा चाहिए कम से कम. तो दिस टेल्स हिम कि अच्छा 30% ही मिले हैं, अभी 20% और वोटर जमा करने हैं. देन ही स्टार्ट डूइंग हिज कैंपेन. तो बेसिकली कोई भी नंबर किसी का, आपको मान लिया आप सेविंग करते हो, आपको जो भी पैसे मिलते हैं घर में किसी काम के लिए, तो आपको थोड़ा सा सेव करते हो. कोई पूछता है अरे आपको वॉकमैन खरीदना था, कितना परसेंट सेव हो गया, तो आप देखते हो अच्छा वॉकमैन का दाम है 1200 रुपया, मैंने 500 सेव किया है, कितना परसेंट सेव हो गया, तो फिर तो 500 आउट ऑफ 1200 मैंने सेव कर लिया है, इतना परसेंट मैंने सेव कर लिया है. तो दिस टेल्स यू जो भी मतलब वो 41-42% सेव कर लिया है. तो आपको लगता है 42% सेव कर लिया और 60% सेव करना बाकी है. So this is this is the way you calculate. अभी तक कोई डाउट? मतलब हमने सीखा रेशियो क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और किसी नंबर को किसी का परसेंटेज की टर्म में निकालना हो तो कैसे करेंगे, राइट. अभी डिस्काउंट की बात करते हैं. अभी तक कोई डाउट? ओके No, sir. ओके. तो चलिए अभी डिस्काउंट की बात करते हैं कुछ. चलिए आप अभी दिवाली डिस्काउंट चल रहा है भाई, ठीक है, उस पे लिखा हुआ है 840 रुपीज. आप दुकान में गए, आपने पिक किया सामान, लेट्स से टी शर्ट, इट सेज 840 रुपीज इसका दाम है, मार्क प्राइस, और 15% डिस्काउंट चल रहा है. नाउ टेल मी हाउ मच यू हैव टू पे. तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है वो देखेंगे पहले. 840 जो दाम है, 15% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 15 उसका 15%. दिस टेल्स यू कि कितना डिस्काउंट चल रहा है. तो ये गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 242, 42 into 3 126, इतना का डिस्काउंट मिलेगा आपको. तो 840 इज द प्राइस minus discount. Discount is always minus 126. Then you realize that you are going to get no, sorry, up, oh, come on 1 7. Then for anything which is marked for this much, you'll be able to buy it for 714. ठीक है, तो ये है डिस्काउंट का खेल. अगर जो भी प्राइस लिखा हुआ है, अगर somebody says कि लिस्ट प्राइस है 220 rupees, okay, and there is a discount of 30%,
ठीक है, दुकान में गए, आपको बोला दिवाली डिस्काउंट 30% चल रहा है सर, खरीद लीजिए। आपने एक सामान उठाया 220 रुपए का, 30% डिस्काउंट चल रहा है, आप यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कितना पे करना है। तो 220 का 30% डिस्काउंट चल रहा है। फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड आउट कि भाई मेरे को छूट कितना मिल रहा है। तो दिस इज द छूट, दिस इज द डिस्काउंट। तो पता चला कि 66 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है आपको फॉर अ कमोडिटी विच इज टैग्ड एट 220 रुपीज। तो आपको बेसिकली 220 माइनस 66 ये हो गया, तो 154 मिल जाएगा। तो 220 लिखा हुआ रहेगा टैग पे, आपको वो सामान आप 154 में पिक कर सकते हो। आप खुशी खुशी घर आओगे, चलो देखो अच्छा हुआ, मजा आ गया, 220 लिखा हुआ था, कम में मिल गया। राइट, सो दैट्स व्हाट गेट्स पीपल एक्साइटेड, क्योंकि डिस्काउंट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज लाइक। वी एंजॉय दिस थिंग कि भाई हाँ देखो इतना लिखा हुआ था। अब मान लिया आपने कोई जीन्स खरीदने के लिए गए, वहां पे लिखा था 1500, अरे यार ज्यादा दाम है। तभी अचानक से कोई डिस्काउंट ऑफर हुआ, 40% डिस्काउंट, वही 1500 का सामान जो है 900 मिलने लग गया। तो आपको लगता है आई सेव समथिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस साइकोलॉजी ऑफ डिस्काउंट वर्क्स। कि आप देखेंगे दुकान में मक्खी नहीं मारने के लिए लोग नहीं रहेंगे। अचानक से दिवाली का डिस्काउंट या दशहरे का डिस्काउंट या कोई पर्व त्योहार का डिस्काउंट आया, एंड देन दे पुट 20% डिस्काउंट। हर कोई भाग के जाता है कि भाई चलो अभी कम दाम में मिल रहा है, उठा लेते हैं, राइट? दैट्स डिस्काउंट। लेकिन एक कैच ये है कि अगर कोई सामान का दाम 220 लिखा हुआ है, आपको 10% डिस्काउंट मान ली मिल रहा है, दुकानदार ने बोला कि 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें से 22 माइनस कर दीजिए। 10% ऑफ 220 इज दिस, तो हो जाता है 891। आपको लगेगा कि 198 में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि you end up paying tax, different taxes, sales tax, VAT, GST, right? जब भी आप सामान खरीदोगे दुकान से, जब बिल देखोगे तो बिल में सामान रहेगा, उसका डिस्काउंट प्राइस रहेगा, नीचे में टैक्स रहेगा, एंड आफ्टर ऑल दैट टुगेदर दैट इज व्हाट यू पे। सेल्स टैक्स अगेन इट्स अ टोकन मनी दैट गोज टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हमारे लिए एजुकेशन का जुगाड़ करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके लिए पैसे लगते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाट कम्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर। देखेंगे 6% टैक्स, 8% टैक्स, ऐसा कुछ आता है, ठीक है? दिस गेट्स एडेड। मान लिया जाए आपका 200 रुपए का सामान था, somebody and you have to pay 6% टैक्स, ठीक है? तो 200 का 6% is 12, तो दिस टैक्स गोज टू गवर्नमेंट, ठीक है? तो बेसिकली 200 रुपए का सामान था, तो आपको 200 प्लस 12 इतना ऐड करें, मतलब 212। द कस्टमर विल पे 212, द शॉपकीपर टेक्स द टैक्स फ्रॉम अस एंड पेज टू द गवर्नमेंट दिस टैक्स अमाउंट, एंड दिस इज हिज कॉस्ट, ओके? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन वाइज सब कुछ सेम है। डिस्काउंट reduces your price, tax increases your price, and tax is something that is always there. टैक्स सरकार को हमेशा जाना ही जाना है, ठीक है? बिना टैक्स के सरकार नहीं चल पाएगी, ठीक है? तो कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इट जस्ट नो इट्स जस्ट द फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी आपका डिस्काउंट है, दैट इज अप्लाइड ऑन द स्टिकर प्राइस। स्टिकर में जो लिखा हुआ रहता है कि भाई ये इतने रुपए का है, स्टिकर प्राइस माइनस डिस्काउंट, स्टिकर प्राइस प्लस टैक्स। तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, टैक्स हमेशा ऐड होता है, ठीक है? तो ये था जानकारी के लिए। लेट्स लुक एट सम सम्स एंड सी इफ वी नो हाउ टू डू इट। वी विल नॉट ट्राई डूइंग इट इन दिस क्लास, क्योंकि 3-4 मिनट में क्लास खत्म होने वाला है। लेट्स लुक एट सम सम्स, ओके? देखिए क्या होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग: स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर,
to the speed of the scooter 30 km per hour. 50:30 है ना. स्पीड ऑफ साइकिल ये है 15 km per hour. स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 30 km per hour. तो इस बता रेशियो क्या निकालना. तो 15:20, 15:30. अब 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर. तो 5 मीटर. देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. यहाँ पे मीटर है, किलोमीटर है. यू हैव टू ब्रिंग देम इन 1 यूनिट. तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर विल बी 10 into 1000 मीटर. तो 5:10,000 हो जाएगा ये. 50 पैसे टू 5 रुपीज. लगा था ना आसान है, लेकिन आसान में मतलब थोड़ा ध्यान रखना है. 50 पैसे टू 5 रुपीज. यहाँ पे पैसे है, रुपीज है. तो 50 पैसे टू 5 रुपीज मतलब 500 पैसे. तो 50 पैसे टू 500 पैसे, एक यूनिट. 50:500 हो जाएगा ये रेशियो. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेजेस. देखिए ये क्या है, 3:4 टू परसेंटेज. तो क्या हो जाएगा 3:4. 3:4 ठीक है, मतलब 3/4 इंटू परसेंटेज. तो 3/4 इंटू 100. बस ये देखिए, दिस इज सेम एज, दिस रेशियो सेम एज 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4. 75%. तो कोई भी रेशियो रहेगा ना, रेशियो परसेंटेज करने बोलेगा 3:2. तो बस 3/2 इंटू 100. दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी. Let's see some more questions quickly. Probably this one only, and then rest we'll do in the next class tomorrow. देखिए 2:3, 2/3 into 100. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? 72% of 25 students. 72% of 25. So 72% of 25 क्या होता है? 70 मतलब 25 का 72%. This is what it is. बस कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड. नॉट इंटरेस्टेड मतलब 25 का 72%. तो 25 का 72% निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू होता है माइनस 25 कर देंगे. 25 में से इस नंबर को माइनस कर देंगे. दैट विल बी योर दिस थिंग. और यू कैन से ओके 72% आर इंटरेस्टेड, मतलब हाउ मेनी परसेंट आर नॉट इंटरेस्टेड. 100 - 72. बाकी बच्चे 28% दे आर नॉट इंटरेस्टेड. तो 25 का 28% निकालेंगे, उससे काम हो जाएगा, है ना. ओके रुकिए, बच्चों को ऐड कर लेता हूं मैं. है चल. तो क्विकली यहाँ पे लास्ट देखिए, उसी तरह से देखेंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि क्या क्या. ये वाला थर्ड सम इज इजी. Football team won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage is 40. है चल, मैं पिछला क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा, उसके बाद विल स्टार्ट इंग्लिश वाला. ठीक है, ओके. तो देखिए यहाँ पे टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. तो एक काम करते हैं क्षितिज, विल काइंड ऑफ कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो एंड देन वी डू रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस.